آج میں آپ کو کراچی کے اس بزنس مین سے ملوانے جا رہا ہوں جو 2014 میں جب کراچی آئے تو ان کی جیب میں چند ہزار روپے تھے، سڑکوں پر بھی سوئے، مشکل حالات بھی دیکھے، بھوک بھی دیکھی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج یہ کامیاب بزنس مین ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج میں آپ کی ملاقات کراچی کے اس معروف بزنس مین سے کروانے جا رہا ہوں جو گجراوالا کے چھوٹے سے گاؤں سے کراچی جب آئے تو ان کی جیب میں چند ہزار روپے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر بھی سوئے، مشکل حالات بھی دیکھے، بھوک بھی دیکھی، لیکن آج ان کا شمار کراچی کے بڑے ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز میں ہوتا ہے۔ بلال طالب کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جب میں نے کانشیسلی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا تو میں نے ایک چیز تو طے کر لی تھی اس وقت بھی، حالانکہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا تھا، لیکن وہاں پہ بھی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ لائف آئے اور گئے والی نہیں چاہیے، اپنے کو ایک جاندار اس کی وہ جو ہے نا ڈیفینیشن چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جو لائف ہے نا اس کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری پرفارم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آئے اور گئے تو کوئی دنیا پہ کوئی امپیکٹ ہی نہ چھوڑے، کوئی اپنے حصے کا کوئی کام ہی نہ کر پاؤ۔ تو یہ تو میرا پہلے طے تھا۔ جب میرا یہ انجینئرنگ چل رہی تھی تو اس دوران بھی میں یہ چیزوں کو نوٹ کرتا تھا کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہے ایک بینگ اے کیمسٹ اور کیمیکل انجینئر میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں کر پاؤں گا جو میں چاہتا ہوں، جو میں لائف کی ڈیفینیشن چاہتا ہوں یا جو میں چاہتا ہوں کہ چیزیں جو ہے نا ویسے ایگزیکیوٹ ہوں لائف کے ساتھ، تو وہ نہیں، مجھے وہ نہیں آتا تھا۔ جب میں اس کو اپنے آپ کو ایک کیمیکل انجینئر کی حیثیت سے کامیاب بھی دیکھتا تھا تو میں وہ چیزیں نہیں امیجن کر پاتا تھا جو میں چاہتا تھا، جو میرا انر چاہتا تھا، جو انکانشیسلی جو میری ایک ڈائریکشن بن چکی ہوئی تھی۔ پھر کیا حالات بنے؟ اس کام کا آغاز کب کیا اور پھر یہ دسمبر 2014 سے یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پھر یہ جی وہاں سے پھر میں ان کے ساتھ وہاں سے پھر ایک مجھے ایک اپنے گاؤں میں نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی، زمین تھی کوئی وہ لی، وہاں پہ ایک ڈسپیوٹ ہمارا بن گیا۔ تو وہ ڈسپیوٹ نے میرا جو پچھلے والا دفتر تھا یہ بھی بند کرا دیا، اور وہ اس کو چلتے چلتے وہ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اب وہ سمجھنے شاید وہ کوئی چیزوں کو بڑی دوسری طرف لے جاتا۔ اگر میں وہاں سے کوئٹ نہ کرتا، میں وہاں سے نکلتا نہ، اپنی جگہ نہ چھوڑتا، تو شاید وہ کوئی بہت بڑا سانحہ جنم دیتا۔ تو اس لیے میں پھر وہاں سے نکل کے میں نے یہ کراچی میں جو ہے نا وہ اس کا شروع کیا، کیونکہ یہاں پہ ایک جو بزنس اپرچونٹی تھی بیریئر ٹاؤن کی، یہاں پہ نیا لانچ ہوا تھا پروجیکٹ، اور یہاں پہ چیزیں جو ہو رہی تھی، بزنس جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی ان کی مجھے خبر تو ملتی تھی، ظاہر ہے میں پہلے بھی وہاں پہ بھی اٹیچ تھا، تو وہ اس وجہ سے پھر میں نے وہاں سے جو ہے نا اس کا سفر کیا۔ کیسے آئے؟ تو گھر والوں کو کیسے کنونس کیا؟ گھر والوں کو میں نے یوں کیا کہ میں نے ان سے ایک فیک سٹوری جوڑی ان کو، میں نے کہا جی وہاں پہ میرا ایک دوست ہے، وہ بڑا سیٹ ہے، اس کا کاروبار یہ وہ، تو مجھے اس نے بولا کہ تو ادھر میرے پاس آ جائے، چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی پیچھے پھر نئی پریشانی میں انگیج رہیں یا پریشان وہ ان کو، تو میں نے ان کی ایک کہانی جوڑی، میں نے کہا اس طرح میرا ادھر ایک دوست ہے وہ بڑا سیٹ ہے، اس نے مجھے بولا آپ آ جاؤ میرے پاس ایسے، تو میں لہٰذا اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرا ہوسٹ ہے اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یوں کر کے میں نکلا، حالانکہ آگے کوئی چیز نہیں تھی، نہ تو کوئی ریسیو کرنے والی نہ کوئی ویلکم کرنے والی۔ تو جیسے ہی پھر یہاں کراچی پہنچے تو یہاں سے پھر میں نے ایک ہوٹل لیا، وہاں پہ یہ کینٹ اسٹیشن کے باہر ہی ایک وہ ہے، تو وہاں سے پھر میرا جو ڈی ایچ اے میں جہاں پہ آفیسز تھے وہاں کا وہ میں سمجھ لیں دریافت کیا اس کو، تو ادھر گیا، ادھر جا کے پھر وہاں پہ اپنی جو مارکیٹ تھی، وہاں پہ اس وقت کی جو مارکیٹ تھی اس کے اندر پھر میں نے جانا، چکر لگانا، باقی دوست احباب کو کوئی کال کرنا، کوئی کسی طرح سے کوئی ایک آدھ کانٹیکٹ ملے جو مجھے، کیونکہ ہمارے جو یہ پراپرٹی کا اور ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے اس میں سب سے جو میجر چیز ہوتی ہے وہ ریفرنس ہوتا ہے، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے، اور اس میں بغیر ریفرنس سے آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے چیزوں پہ، تو اس وجہ سے پھر مجھے وہ ایک ریفرنس چاہیے تھا، وہ جو مجھے نہیں مل رہا تھا، تو اس کے لیے بھی میری ایک لمبی سمجھ لیں مجھے اس کے لیے سفر کرنا پڑا۔ میرا ڈیلی یہ کینٹ سے جانا توحید کمرشل تقریباً 8 کلومیٹر کا یہ جانا اور آنا، میرا پیدل آنا اور جانا، اور وہ میرا سارا وہاں پہ سارا دن بیٹھنا، چیزوں کو دیکھنا کہ کوئی ایک بندہ مل جائے جو چیزوں کو جو ہے نا وہ کر سکے۔ تو اس دوران پھر میں جب سمجھ لیں ساری جو انرجیز تھیں وہ میری ٹوٹل فوکس تھیں، چونکہ میں اس سے پہلے بڑے سارے فیلورز دیکھ چکا تھا لائف میں۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ لٹرلی سونا پڑا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ وہ کیا ہوا تھا؟ پیسے ختم ہو گئے تھے اور پھر آپ
रियल एस्टेट की इतना बड़ा नाम बन असल गया। में मैं ना बड़ा साहब जब चल रहा था ना, जब ये मेरा अभी सफ़र चल रहा था, डेली मेरा जाना और वापस आना, और वो उसके लिए मैं दगोदग कर रहा था, तो उस दौरान ज़ाहिर है फंड्स का तो ज़ाहिर है मैं एक लिमिटेड सी छोटी सी अमाउंट थी, चंद 22-23 हज़ार रुपया था टोटल, वो ज़ाहिर है उसको भी दिया, जो होटल वाला था वो भी डेली बेसिस पे उसके चार्जेस थे, और बाकी भी अपना खाना पीना आना जाना। इसी दौरान मुझे एक मेहमान भी मिल गया जो मेरे पास बचे जब मेहमानों को विदा करने के बाद, तो वो मैंने अपने जो होटल वाला था उसको दे दिया कि यार मेरा कम से कम छत का जो है ना मेरा वो रहेगा बंदोबस्त, कि मैं छत में लेटूंगा तो कमरे में आके पेट के साथ देख लेंगे, जो कोई भी बंदोबस्त कर लेंगे। तो वो खैर वो पेट को तो चलाता गया, लेकिन ये छत वाला एक टाइम आया कि अभी वहाँ पे आगे आगे कोई बना नहीं, तरतीब बनी नहीं, और यहाँ पे जो है ना वो किराए के जो पैसे दिए हुए थे वो पूरे हो गए। तो इसने जो है ना वो मुझे, ये जो होटल वाला था, इसने कहा जी अब आज आपके वो पैसे पूरे हो गए हैं। मैंने कहा यार आप मेरा बैग इधर रखो, मैं वही नहा धो के अपना जिस तरह डेली एक नई एनर्जी और अपने पूरे यकीन के साथ निकलता, मैं वैसे ही निकला। मैंने कहा बैग आप रखो, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं रात को आके आपसे पिक कर लूँगा। वो भी दिन मैं गया, जाके सारा मैं उधर घूमा फिरा, लेकिन कोई ना, वह यहीं दो तलवार के बराबर में ना एक वो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे मोस्टली जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना वो वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते, तो मैंने भी वहाँ पे पढ़ी और बड़ा एक खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगा। असर भी पढ़ी मैंने, मगरिब भी, तो मैंने मांगा, मैंने कहा या अल्लाह अब बस हो गई है, अभी जो है ना वो अपनी समझ लें जितने यकीन वाले थे ना, वो यकीनियाँ बेयकीनी में बदलनी शुरू हो गई, अब कोई रास्ता निकाल दे। 27 नवंबर 2014 की रात है, तो वो जो सेन था उसके अंदर समझ लें वो नशई और मांगने वाले जो वो सोते थे, तो ये रात मैंने वहाँ पे लेट के गुजारी थी, और मेरे हाथ में एक घड़ी थी और जेब में एक क्यू मोबाइल था वो छोटा सा। जैसे ही मैंने ये लेटा तो फिर एक वो कोई अल्लाह का बंदा गुजरते हुए उसने मुझे बोला कि तू ये तेरा मोबाइल और तेरी घड़ी उतार लेंगे ना ये जो लोग हैं नशई वगैरह। तो मैंने कहा मैं सोऊंगा तो उतारेंगे ना, लेकिन खैर जैसे ही फजर हुई फिर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात से खुशी खुशू के साथ मांगा। मैंने कहा या अल्लाह कोई रास्ता निकाल, अब जो है ना वो बस हो गई है। फिर दोबारा अपने उसी तरफ निकल पड़ा, उसी यकीन के साथ, उसी एनर्जी के साथ कि काम बन जाएगा, कि इंशाल्लाह निकलेगा, रास्ता निकलेगा अपने को अब जो है ना वो नहीं होगा फर्दर। तो वो मैं गया तो मेरी अचानक ये नज़र पड़ी, तो वो मैंने देखा मार्स एसोसिएट का बोर्ड एक उतर रहा था, भी लग रहा था। अब मैंने सिर्फ ऊपर वो जो ना वो पेनाफ्लेक्स खोल रहा था, वो भाई सिर्फ मार्स आया था। अच्छा मार्स तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही है जो मैंने मेरे दोस्त वाले का। अब मैं देखूं कि अल्लाह करे अब ये वही हो, उसके लिए बोर्ड का पूरा खुलना ज़रूरी था, वो पेनाफ्लेक्स बहुत बड़ी थी, वो खोल रहे थे। अब मैं खड़ा हो गया हूँ कि अभी ये ना पूरी खुले, अब मैं देखूँ नीचे जो है ना CEO कौन है, तो फिर मैं ताकि आगे वो बात चले। तो वो जैसे ही खुला ना, नीचे ऊपर लिखा हुआ था राना शहर। यार मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया, जाके उनसे मिला, मैं कहा जी हाँ जी राना साहब, और ये वो सारी उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अपना ऑफिस, मैंने कहा नहीं अपना नहीं करना, मैंने तो किसी के साथ मिल के करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हमारे साथ, ये उनकी मेहरबानी है और उनका एक एहसान है। तो वो फिर मैंने उनके साथ जो है ना वो अपना समझ लें बैठ गया। अभी वो ऑफिस की तैयारी चल रही थी, वो खैर वहाँ से फिर जो है ना वो मैंने उस वक्त वो मैंने पहली कॉल जो थी वो अपनी जो मेरी अभी मिसेज हैं इनको मैंने कॉल की। तो मैंने कहा बस तो अब अपनी स्पीड देख, अपने को रोटी का भी बंदोबस्त हो गया, छत का भी बंदोबस्त हो गया, रेफरेंस का भी बंदोबस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने। फिर उसके बाद मेरे 28 को मेरी शादी थी भाई की, 28 दिसंबर 2014 को। तो 7 को तकरीबन समझ लें हमारा काम जो एक्चुअल ऑफिस जो खुला वो शुरू हो गया था दिसंबर का। और फिर 28 को जब मैं गया तो मैंने ज़िंदगी का पहला वो सफ़र किया था बाय एयर। फिर मैं जाते हुए बाय एयर गया अच्छा। और फिर मैंने जाके कोई एक बड़ी अमाउंट थी वो अपनी वालदा को दी। पहली कमाई कितनी की? मेरी पहली जो डील थी वो 20,000 की थी। ठीक है हाँ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने वो लाइनें लगाता गया करता गया सिलसिला चल गया। अब तो आपके बैरियर टाउन और इर्द गिर्द दीगर बिजनेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। इससे पहले जो इतनी मुश्किलात देखी, कभी सोचा था कि इतने कामयाब भी हो जाएंगे, इतने अमीर भी हो जाएंगे? वड़ाई साहब मैं तो अपने आप को मैं तो ये समझता हूँ, मैंने एक स्ट्रगल और जो की है, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आज अज़म कर लूँ मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, तो मुझे लगता है मैं नहीं उसको, मुझे कोई ऐसा ख्वाब नहीं लगता, मुझे वो ऐसी ही हकीकत लगता है जैसे आपके पीछे ये गुलदस्त पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो सोच ले वो जो आप बांध लोगे, जो जिस तरफ आप डायरेक्शन ले लोगे, डेफिनेटली हमें जो इसका जो नेचर है या कुदरत है या जो एक कायनात का वो है, उसको हमें उसके समझना पड़ता है, उसके साथ चलें तो रास्ते तो हर वक्त मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर वक्त मौजूद हैं। डेफिनेटली मैं अगर इतना ज़्यादा नाकामियों को ना फेस करता, शायद मेरा कॉन्फिडेंस ये ना होता
या मेरी जो चीज़ों की जो ग्रोथ है वो शायद उसकी स्पीड ये ना होती। फिर मैं जब अपने आप को तसल्ली देता था ना, जब मैं चीज़ों में से चला जाता था, तो मैं ना लेस ब्राउन एक इंग्लिश स्पीकर है, उसकी वो बात मैं ना अपने लिख के अपने जेब में रखता था। क्या और मैं अक्सर वो ये कहता कि जो चाइनीज़ बम्बू ट्री है ना, वो जब उसको दफन करते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो 5 साल तक ना उसके ऊपर वो पानी डालते रहते हैं, उसको खाद डालते रहते हैं, पानी डालते, नज़र कुछ नहीं आता। तो कहता राइट लेफ्ट वाले भी ना मजाक करते हैं, हाँ तुम चाइनीज़ बम्बू ट्री उगा रहे हो, हाँ वो पानी दे रहे हो, सुबह जा रहे हो पानी, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। फिर जब वो 5 साल बाद वो जो चाइनीज़ बम्बू ट्री है वो जब निकलता है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर 60 फीट जो है ना वो ग्रो करता है। फिर उसकी ग्रोथ जो है वो सारी जितने वो यानी इसके ऊपर प्लान जो हमारा अर्थ है, इसके ऊपर जितने प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ फिर उसकी होती है। पहले तो बज़ाहिर कुछ नहीं नजर आता, पहले कुछ नहीं, और बाद में एफर्ट्स उस वक्त बर्न हो रही होती हैं, एनर्जीज लग रही होती हैं, ठीक है, वो सारी केयर और वो टाइम हर चीज़ इन्वेस्ट हो रही होती है, लेकिन नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब वो निकलता है तो फिर वो पूछता है, वो कहता है कि क्या ये जो 1 हफ्ते की ग्रोथ है या 5 साल और 1 हफ्ते की है? तो एक्चुअल वो 5 साल और 1 हफ्ते की है। तो वो मैं ये समझता था कि मेरे अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। जब मैं ये कर रहा था मैं कहता था देखो जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं अपनी एनर्जी जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ों को नए नाकामियों को फेस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जो कामयाबी है वो भी मेरी इंशाल्लाह इसी तरह से होगी जिस तरह वो चाइनीज़ बम्बू ट्री की मिसाल देता था लेस ब्राउन। तो इस वजह से मुझे यकीन था इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो मेरे लिए रसा। आज आप CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं आपके, और कितने नए आने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साहब, हमने सबसे पहले जो चूँकि पहले हम इसमें रियल स्टेट में अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स की तरफ ये किया, कंस्ट्रक्शन में आए। सबसे पहले हमने लिबर्टी रेजिडेंशियल के नाम से प्रोजेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है, उसकी फिनिशिंग का काम जारी है। फिर उसके बाद हमने टेक मॉल, क्योंकि ये नया बसने वाला शहर है, हमने यहाँ पे जो है ना महसूस किया, चूँकि मोबाइल और टेक्नोलॉजी अब हर बंदे की समझने वो ज़रूरत है, हमने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे एक ज़रूरत है इस मॉल की। हमने सबसे पहले टेक मॉल अपना यहाँ पे वो लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा कंसेप्ट जो है वो बड़ा जानदार गया, जो लोगों ने लाइक किया और हर बंदे ने इसको महसूस किया। उसके बाद फिर हमने एक लेक व्यू रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट दिया, फिर उसमें हमने वो भी हमारी बड़ी जानदार लोकेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा शानदार। फिर उसके बराबर में हमने डॉक्टर प्लाजा दिया। अब ये भी एक समझ लें हर बंदे से जुड़ी हुई चीज़ की थी, तो चूँकि यहाँ पे भी एक नए आने वाले मतलब एक यानी बहुत बड़ा शहर है ये भी, तो यहाँ पे हमने ज़रूरत महसूस की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा बड़ा शानदार गया। डॉक्टर प्लाजा के बाद फिर तो बस एक के बाद एक, फिर थीम पार्क रेजिडेंशिया, फिर कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, कायद रेजिडेंशिया, इकबाल रेजिडेंशिया, ड्रेस मॉल। तो ये इस तरह से करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 6-7 जो हैं हमारे वो समझ लें अंडर प्लानिंग हैं और वो चीज़ें वो हमारी चल रही हैं। अभी हम इंशाल्लाह ये जो बैरियर टाउन कराची है, इसको पूरे के अंदर हम एक अपनी जो होटल सर्विस अपार्टमेंट है उनकी एक चेन बिछाने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह हम जहाँ पे जो आबादी का वो उसको तनासब को हमने तकसीम करके कहाँ पे कितनी ज़रूरत हुई उस हिसाब से हमने वो प्लाट जो है ना परचेज़ कर रखे हैं। उसके ऊपर अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पूरी चेन एक जो है ना वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे। आपकी कामयाबी के पीछे असल राज क्या है? क्या समझते हैं कि ये एक चीज़ है जिसने मुझे कामयाब करती है? मैं शुक्रगुजार रहा हूँ, मैंने शुक्र नहीं हुआ कभी। मैंने हमेशा जिस रात मैं यानी भूखे पेट के साथ भी लेटा था ना, मैंने नाशुक्री अल्लाह की तब भी नहीं की थी। मैं कहता था कि ठीक है, तूने मुझे इतनी हिम्मत तो दी है कि मैं चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, तूने मुझे ये करेज तो दिया है कि मैं अपनी एक शानदार लाइफ के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं उस रात का भी जो मेरा अपने आप के साथ मुकालमा था, मैं उसमें भी उसका शुक्र अदा करने के लिए चीज़ें गिन रहा था अपनी उंगलियों के ऊपर के शुक्र है तूने मुझे ये तो दिया, शुक्र है तूने चल बिस्तरा नहीं दिया ठंड बर्दाश्त करने की, तूने मुझे वो तो दिया, इस्ता तो दी है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अपनी उंगलियों पर गिन रहा था। मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक वो हर हाल में जो शुक्र गुजारी वाला जो है ना, मैं उसको समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए वो आसानियाँ पैदा की। इन 6-7 सालों में किसी दिन जिस दिन बहुत कमाई की वो एक दिन, उसकी क्या होगा वॉल्यूम एक दिन की कमाई, जिस दिन आपने कहा होगा यार ये छक्का लगा आज? बड़ा साहब ये इस तरह से इसका डिजिट देना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसी बड़ी अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लोग शायद या किसी टाइम में जो मेरा कभी ख्वाब था कि जो कोई इतना कमा ले तो पता नहीं उसको उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक दिन की तो वो मैंने वो जिस दिन वो भी मैंने कमाई थी ना, तो अगले दिन मैं अपनी चेयर पे 1 घंटा पहले आके बैठा था
ऑफिसियर पे कि मुझे ज़ाहिर है मैंने उसमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र भी अदा किया, और मुझे अब वो चीज़ें अब वो थोड़ी सी जो है ना सेकेंडरी होती जा रही हैं। आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? मुश्किल तरीन दिन बड़े ही गुजरे हैं। एक अभी जो रिसेंटली जिस वक्त डॉक्टर ने मुझे बताया मेरे भाई का, वैसा वो मेरे लिए बड़ा टफ था। अभी तकरीबन 1.5 माह हुआ मेरे भाई की डेथ हुई है, तो उसका मुझे उसने बताया कि इनके ना वो कैंसर बन चुका हुआ है। तो मैंने उससे सारे ऑप्शंस पूछे कि क्या क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा कोई ऑप्शन नहीं। तो वो जो लम्हे थे या वो जो ना समझ लो, उसमें मुझे ये जितनी भी अचीवमेंट है ना सब ज़ीरो लगने लगी थी कि मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं सारा कुछ होने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे ऐसे महसूस होता। और ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा कौन सा था? खूबसूरत तरीन लम्हा जब मैंने को थोड़े वो अम्मा अब्बा को अपने को ना हज पे भेजा था, तो वो उस वक्त अभी मेरा बिल्कुल स्टार्ट के मंथ थे जब मैंने अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कर लिया था कि उनका, तो वो जो था ना वो मुझे बड़ा एक ऐसे मैंने उस दिन जिस ना अचीवमेंट की फीलिंग्स वो मैंने ली थी कि मुझे फील हुआ था कि हाँ यार मैंने कुछ कर लिया। अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो मुतमईन करने की तरफ, मुझे मेरे इनर को जो मुतमईन करने की वाली जो वो समझ ले मुझे मिलनी शुरू हो गई थी चीज़ें। बहुत से लोग हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, जेब में चंद रुपए हैं, चंद हज़ार रुपए हैं, और आप ही की तरह सोचते हैं वसाइल नहीं है, कोई वाकिफ़ नहीं है, वो क्या करें? एक तो बड़ा साहब अभी हम जो है ना हमारा एक इंस्टीट्यूट हम ओपन करने जा रहे हैं, जो तो रियल स्टेट में आके अपना वो करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हम एक इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं, SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। ये एक वेलफेयर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो चूँकि ये स्कूल जो हेड कर रहे हैं वो हम ये बैरी टाउन के जो कंट्री हेड हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, मेरे मोहसन हैं, वो इसको हेड कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी बंदा जो रियल स्टेट के अंदर आके अपना करियर बनाना चाहता है, जो उससे इसके थ्रू अपने ख्वाब पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक हम प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहे हैं। आपने अपने वालिद साहब को जाके बताया कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने बिजनेसमैन बनना है और मैंने पैसे कमाने हैं, तो उन्होंने क्या कहा? मैंने वड़ाई साहब जब मैंने जाके उनसे कहा कि मैंने ना इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरा इससे ना ख्वाब नहीं पूरा होता। गर्मियों के दिन थे, हम बाहर बैठे हुए थे बाप बेटा, तो वालिद साहब चावल खा रहे थे, तो चारपाइयाँ जिस तरह गांव के वो बड़े सेनों में होती हैं वो थी, तो ना वो कहते हैं क्यों नहीं करनी, थोड़ा गुस्से के साथ ना। मैंने कहा मुझे नहीं, मैं अगर कोई 1.5 लाख सैलरी ले भी लूँगा तो मैं क्या करूँगा उससे, मेरी ज़रूरत, मेरी नहीं ख्वाब पूरे होते हैं ना। तो वो ना जिस तरह हम कोई अनहोनी बात करें तो हम हंसते हैं ना, मेरा अब्बा जी के ना गुस्से के साथ ही हंसी निकल गई कि यार किस तरह की बात कर रहा है, बोले मतलब 1 लाख के साथ भी आपका महीना नहीं गुजरता साहब जी। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं गुजरता। तो मेरा एक यकीन था, मेरा एक वो, तो वो उनका ना वो एक्सप्रेशन जो थे ना, उनका जो गुस्सा था ना वो हैरत में भी और उनकी वो उसमें बदल गया कि यार ये क्या किस तरह की बातें कर रहा है ये, कि उसमें उन्होंने बोला तू चाहता क्या है? मैंने कहा मैं अपनी एक आइडेंटिटी चाहता हूँ, मैं अपनी शनाख्त चाहता हूँ। अच्छा ये बातें ही नहीं थी उनके लिए, ये फलसफे ही नहीं थे। तो वो जब उन्होंने इस चीज़ पे ना, मैंने कहा जी मैं इस तरह से करके जो ना, वो तूने कोई ड्रामा देख लिया, तू कोई वो कर लिया, वो जो एक होता है कि यार मैंने इतनी, हर बंदा मुझे मुबारकें दे रहा था कि तेरे बेटे का इंजीनियरिंग एडमिशन होया और ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ पेरेंट्स का जो है ना वो इनसिक्योर फील करते हैं थोड़ा सा, वो उनके लिए बैकग्राउंड वो था, ऐसा होता है कि उसमें वो हैरत हो जाती है कि ये पता नहीं सर्वाइव करेगा। तो आप सारे भाई मुख्तलिफ जगहों पे सेटल थे, अब सारों को ही आपने बिजनेस से जोड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लगा कि हमने एक, हर बंदे की पर्सनल होती है ये ग्रोथ या उसकी जो, वो उसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी एक यूनिट के तौर पे जो है ना वो आगे ग्रो करता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली जो है वो एक अच्छी और जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनमें इससे शुमार हो। मैं उसके लिए भी मैंने अपनी अलग वो बनाई हुई हैं चीज़ें जो तरतीब दी हुई हैं कि हम यहाँ से यूँ करेंगे, हम वहाँ से यूँ करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुअली चीज़ों को कर रहे हैं। सलाहियत, काबिलियत, मेहनत या साबित कदमी, आपकी कामयाबी में किसका किरदार ज़्यादा है?
अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ कि साबित कदमी जो है ना, कंसिस्टेंसी, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सलाहियतों का जो है वो जब आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रो हो जाती हैं। मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं था, मैं इतना अच्छा वो भी नहीं था, बिजनेसमैन भी नहीं था, मैं इतना एनालिटिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका भी वो नहीं था। ये सारी चीज़ें जब मैं लगा रहा एक डायरेक्शन में, साबित कदमी। साबित कदमी को मैं एक नंबर पे रखता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है।